students. In my earlier video lecture, we completed the second chapter. In that video lecture, we discussed the traditional approach theory and approach theory. Means Modigliani and mirror approach theory. Now we started with the new and very easy unit of financial management, that is leverage. The term leverage is used to describe the ability of a firm to use fixed cost assets or funds to increase the return to its equity shareholders. In other words, leverage is the employment of fixed assets or funds for which a firm has to meet fixed cost or fixed rate of interest obligation, irrespective of the level of activities attained or the level of operating profit earned. Okay, so leverage results from using borrowed capital as a funding source when investing to expand the firm's asset base and generate returns on risk capital. Leverage is an investment strategy of using borrowed money, specifically the use of various financial instruments or borrowed capital to increase the potential return of an investment. Leverage can also refer to the amount of debt a firm uses to finance assets. When one refers to a company, property, or investment as a highly leveraged, it means that item has more debt than equity. Okay, leverage occurs in varying degrees. The higher the degree of leverage, the higher is the risk involved in meeting fixed payment obligations, that is, operating fixed cost and cost of debt capital. But at the same time, higher risk profile increases the possibility of higher rate of return to the shareholders. Okay, so लिवरेज मतलब क्या है? बोरोड कैपिटल जो है, मतलब रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग बोरोड कैपिटल एज अ फंडिंग सोर्स के लिए लिवरेज निकालना ज़रूरी पड़ता है व्हेन इन्वेस्टिंग टू एक्सपांड द फर्म्स एसेट। जब हमको ऐसा लगता है कि फर्म की एसेट और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, एक्सपांड होनी चाहिए एंड जनरेट रिटर्न ऑन रिस्क कैपिटल, उसके बदले में रिटर्न भी आनी चाहिए। सो लिवरेज इन एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, क्या कहा गया है? लिवरेज ये क्या है? एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कि बोरोड मनी कैसे यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली यूज़ ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बोरोड कैपिटल। ओके, ये सब क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसका रिटर्न कैसे इंक्रीज होगा, मतलब पोटेंशियल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ओके, इंक्रीज कैसे होगा, ये देखने के लिए लीवरेज जो है वो यूज़ करते हैं कंपनी में। ओके, जैसे कहा जाता है कि ये हाईली लिवरेज्ड कंपनी है, मतलब डेप्ट हैज़ मोर डेप्ट दैन इक्विटी, डेप्ट जो जाता है इक्विटी से। ओके, सो ये मतलब है लिवरेज का। ओके, सम डेफिनेशंस आर गिवन टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट लिवरेज। दो डेफिनेशन है, वेरी शॉर्ट डेफिनेशन है, सो go through the definitions. According to Ezra Solomon, leverage is the ratio of net returns on shareholders' equity and the net rate of return on capitalization. Okay, simple and sweet definition है। leverage क्या है? रेशियो ऑफ नेट रिटर्न, जो मिलने वाला है उसका रेशियो है ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, किसके ऊपर? शेयर होल्डर्स की इक्विटी के ऊपर, एंड द नेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटलाइजेशन। ओके, ये कहा है इज़रा सोलोमन ने। द नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू J.C. Van Home. Leverage is the importance of an asset or funds for which the firm pays a fixed cost of fixed return.
ओके, क्या कहा गया है, ये एक क्या है, फिक्स कॉस्ट है जिसके ऊपर फिक्स रिटर्न मिलता है, ऐसा कहा है J.C. वैन होम ने। ओके, सो अब देखेंगे इसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ लिवरेज, leverages are the three types. First one, operating leverage. Second one, financial leverage. And third one, combined leverage. ओके, ऑपरेटिंग लिवरेज रेफर करता है, ऑपरेटिंग लिवरेज रिफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट सच एज depreciation, insurance of assets, repairs and maintenance, property taxes, etc. ओके, सो ये रिफर करता है ऑपरेटिंग लिवरेज में इन द ऑपरेशन ऑफ अ फर्म, ये सब फर्म के ऑपरेशन में जाता है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, देन फाइनेंशियल लिवरेज किसे बोलते हैं, तो फाइनेंशियल लिवरेज इज प्राइमरीली कंसर्न विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ओके, विच इन्वॉल्व रेजिंग फंड्स फ्रॉम द सोर्सेज फॉर विच a firm has to bear fixed charges such as interest expenses, loan fees, etc. It's related to only finance. Okay, these sources include long-term debt. Okay, long-term debt means debentures, bonds, etc. Okay, and preference share capital. Okay, so long-term debt capital carries a contractual fixed rate of interest and its payment is obligatory irrespective of the fact whether the firm earns a profit or not. ये होता है फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने का फ़ायदा कि फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ओके, सो ये देखेंगे हम फाइनेंशियल लिवरेज में, इसके भी फॉर्मूले है, ऑपरेटिंग लिवरेज के लिवरेज का फॉर्मूला है how to operate out operating leverage, okay, with the help of the formula. then financial leverage का भी फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, सॉरी। और फिर थर्ड हमारा आता है कंबाइंड लिवरेज। ओके, सो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या शो करता है, ऑपरेटिंग रिस्क एंड मेजर बाय द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, फाइनेंशियल लिवरेज क्या शो करता है, फाइनेंशियल रिस्क एंड इज मेजर्ड बाय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, both operating and financial leverages are closely concerned with ascertaining the firm's ability to cover fixed cost or fixed rate of interest obligation. If we combine them, the result is total leverage, and the risk associated with combined leverage is known as total risk. Okay, so ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, सॉरी ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, ये इसका कॉम्बिनेशन करके ये लिवरेज निकालते हैं जिसको बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। इसका भी एक फॉर्मूला है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो ऑपरेटिंग मीन्स बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कौन से मतलब जो भी कॉस्ट लगता है तो उसका लिवरेज कैसे निकालना है, फाइनेंस में जो जो लगता है वो कैसे निकालना है, डिग्री ऑफ लिवरेज, और कंबाइन इन दोनों का कॉम्बिनेशन में हम जाके हम देखेंगे कि टोटल कंपनी को कितना लिवरेज होगा। मतलब हम क्या बोलते हैं कि अगर हाईली लिवरेज्ड है मतलब मोर डेप्ट है, इक्विटी से ज़्यादा मोर डेप्ट है। ओके, सो ये जो बोरोड कैपिटल रहता है फंडिंग सोर्स का व्हेन इन्वेस्टिंग टू एक्सपांड द फर्म्स एसेट बेस एंड जनरेट रिटर्न्स ऑन रिस्क कैपिटल। ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो हर एक कंपनी यूज़ करती है। ये कैलकुलेशन जो है वो फाइनेंस मैनेजर कैलकुलेट करता है कि डिग्री ऑफ लिवरेज क्या होगा। सो इसके लिए उसको फर्म का, कंपनी का ऑपरेशंस देखना पड़ता है, फाइनेंस देखना पड़ता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिला के उसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कंपनी का लिवरेज क्या है। ओके, सो
ये जो लिवरेजेस का कैलकुलेशन है ये 3 टाइप्स में है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइन. सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. ओके, सो in the next video lecture we discuss about the various types of leverages in detail. Okay, so see you soon in my next video. Till then, take care. Thank you.